Hi everyone. Good morning. Morning. So before I give one example of a flow, does anyone has any other question related to any topic or anything? No questions. Currently, none. So in this flow which I am working on, so first of all, I can suggest you one thing. In the flow which you guys are working on, I tried making that flow as well. Okay, I faced one trouble. So I can suggest you one thing. If you remember, there is one field in the theater known as show time, correct? Yes, And that same value you are asking for in a screen flow in the first screen when you ask the movie name and all those things, correct? correct. So instead of taking it a date time field, take it as a date field only, okay, not a time field. Why I'm saying this? Because let me show you one thing. Like for example, if you see here in the theater field, okay, in the show time field, okay, I am entering the show time as December 1st, 12 p.m. Okay, Hmm. this is the show time I enter. But in backend, the value that is coming is, see, show time is coming like this. It is coming in the PST format with the plus 0000. So that's the trouble. You need to convert it and all those things you need to do. So that's why I'm saying instead of date time, take one date field and work accordingly. In the screen flow also take it as a date only. Then you can work on and I didn't get much time to research on how we can convert it. So on Friday, when I give you guys feedback on your flow, on your project, I mean, okay, then I will tell you how you can convert it and work with this time field only, date time field only in this flow. Okay, is that fine?
Currently, Ab- we are taken only for the date, not time. yes, yes, yes. Now, instead of date time field, make it as a date field. Okay. And work accordingly with the date field only. In the flow, also ask for the date, not for date time. Okay. Okay. Everyone understood? Please confirm if everyone Yes. understood. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So that's fine. So now in the flow which I am working on, okay, I will tell you the requirement. Okay. So this will be the first screen. Okay. First, we'll ask the movie name. Okay. Then we'll ask the theater name. Okay. Then we'll ask the date when they saw the movie. Okay. That will be a show date. Okay. And then we'll ask the comments. Comments are nothing but the feedback for the movie that they have seen. Okay. So when they do this, what we need to do is we have one object known as feedback object. Okay. In which I have the fields as two lookup fields are there in the feedback object. Okay. First one is the movie name. Okay. Then we have theater. Then okay. And then we have another field as text area field, that is the feedback field. So understood what all fields we have in the feedback object? Two lookup field and one text area field is there. And we need to update them accordingly. In the text area field, we need to mention the comments, whatever he enters there. Okay. And in the lookup field, we need to enter the movie name ID. Okay. And in the, what do you say, theater field, we need to enter the theater ID. Understood? So now let's create that flow. I've already created that feedback object. Okay. If you want, I can show you. See, these are the fields in the feedback object. First one is a lookup for movie, then lookup for theater, and then the feedback field. That is the long text area field. Okay. So now let's create that flow. So first thing is we'll create the screen.
These four inputs we are taking. Okay. Here I will enter it as feedback form. This will be enter, no, sorry, movie name. This will be theater name. This will be comments. This will be show date. Till here it is clear. Yes. So once you enter this thing, so what's the next thing? Uh, we need to create the record. Okay, feedback object record. But for feedback object record, if you remember, we have two lookup fields. Correct. And in the lookup field, okay, you don't enter the name. Okay, you enter the ID. So how will you get the Salesforce ID of a particular record? So for that, we need to fetch the records. So first one is the lookup on the movie object. So first we need to fetch the movie record. Okay. What we'll do here is you will use the action as get record. Okay. I will enter it as fetch movie record. I will use it in the object. I will enter movie and condition will be whatever movie name I am getting. It will be name equals whatever movie name I am entering in the screen. So for that, I'll use this screen component, move into screen component, and this movie name. Okay, and how many records I want to fetch? Only the first record. First record I want to fetch. Okay, so that's it. Same thing I'll do. I will fetch the theater records now. Get records and fetch theater record. Okay, here I will enter name equals whatever name I enter in the theater in the screen. Okay, and another condition will be here is on the date field. Show date equals, and from the screen it will be show date. Now in the next one, I will use create record, create feedback record. How many codes you need to create? One, and this I will use. For what object you need to create the record? It is feedback object, so I will use this one. And what values you need to enter in the movie? I will enter value as SLB. What is the error here? Let's see. Sir,
या हाँ सर, एक पूछना था। हमारा जो फीडबैक ऑब्जेक्ट है वो सपोज पेरेंट पेरेंट ऑब्जेक्ट है और उस पर डिपेंड है हमारे दो ऑब्जेक्ट, जो थिएटर और मूवी है। ठीक है। थिएटर इज द चाइल्ड एक्चुअली। करेक्ट करेक्ट। तो हमें रिकॉर्ड फेच करना है फीडबैक के लिए। तो इसके लिए हमने रिकॉर्ड गेट किया, ऐसा ही ना? करेक्ट करेक्ट। ठीक। In the now another field will be theater. In that, what we'll use? हाँ, give me a second. I'll use this one, record single variable. From here, I enter the ID of that. Yes. In the feedback field, I will enter the screen components and then there that comments which I have entered. That's it. Click on save. Feedback. So, oh, I will activate this. So now what I'll do is I will create one more movie record. Okay, movie name. Let's enter as Journals Biopic. Release date I will enter as first. Save. In the theaters. Okay, MSP here. Total seats. I give it 100. I am not using this short time field. I will move this. Movie Sham Bahadur. Okay, price per ticket is 150. And date is 1st of December. Okay, now I will paste my flow in the home page. Okay, okay. So this is the flow. Now I'll enter the value here. Bahadur.
थिएटर इज पीवीआर। ओके। This is the comments that I am entering. Okay. And the date when we saw the movies on 1st of December. If I click on next. Okay, so this is done. Now if I go to the feedback, okay, see this is the record that is been created. If you see here, it is showing movie name as Sham Bahadur, theater PVR, and this one is here. Okay, you can see here then if I open these records. That's the second part. Okay, so there is one mistake we did in this flow. Okay, in fetching the theater records, you need to edit element. Enter one more condition as this equals to इधर से जो आपकी आईडी है this ID also, because otherwise there could be two theater records for which like in this case both records for the animal movie theater show date is 1st of December and theater name is PVR, and for Sham Bahadur also the same thing happened. Okay, so that's why. सर Yeah, ये लास्ट वाला नहीं समझा। लास्ट में आपको दोबारा सुना, देखो कह रहा है मेरे पास दो रिकॉर्ड हैं थिएटर के अंदर। ओके, हम्म, दोनों के लिए थिएटर का नेम पीवीआर है। ओके, डेट आपकी जो फील्ड है उसमें 1st of December डाल रखा है मैंने, पर मूवी एक के अंदर एनिमल है एक के अंदर शाम बहादुर। ओके, हम्म, अभी मैंने ये कंडीशन नहीं डाली थी यहाँ पे, हम्म, तो अभी हम ये दोनों चीज चेक कर रहे हैं। तो उसको फर्स्ट जोन सा भी रिकॉर्ड मिला थिएटर का, उसने उसकी आईडी हमारे फीडबैक फॉर्म में पेस्ट कर दी। ओके, हम्म, तो पर तो हुआ क्या, हमने जब ये फीडबैक फॉर्म बनाया तो उसने फीडबैक रिकॉर्ड में, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये थिएटर रिकॉर्ड डाला है उसने इधर। करेक्ट, हम्म, तो इस थिएटर रिकॉर्ड के अंदर मूवी नेम आप चेक कर पा रहे हो क्या है, यहाँ पे एनिमल है। हम्म, पर हमें तो श्याम बहादुर वाला रिकॉर्ड चाहिए ना थिएटर का, जिसमें श्याम बहादुर क्रिएट मूवी होनी चाहिए। हम्म, तो इसलिए हमने क्या करा, अपने फ्लो के अंदर इधर हमने मूवी के अंदर इक्वल कर दिया, जो हमें इधर से मूवी रिकॉर्ड की आईडी मिल रही है ना इस वाले से, वो वाली आईडी हमने इक्वल इधर कर दी इस मूवी के अंदर। मूवी फ्रॉम पेज मूवी रिकॉर्ड मूवी फ्रॉम पेज। ये आपका फैच मूवी मूवी रिकॉर्ड है आपका, जैसे हमने नीचे फीडबैक के लिए किया था, अगर आपको याद होगा। फीडबैक के लिए भी तो हमने लुकअप फील्ड में आईडी कैसे ली है, ऐसे ही ली है मूवी की। हम्म, सेम तरीके से हमने इधर कर दी इसमें भी। ओके, अंडरस्टूड। मतलब वो पेज मूवी रिकॉर्ड उसका नाम ही है, ये मूवी फ्रॉम पेज मूवी रिकॉर्ड, यही क्या वैल्यू? हाँ हाँ हाँ, कि आप मूवी आईडी फेच कर रहे हो फ्रॉम फेच मूवी रिकॉर्ड। ये डिलीट करके फिर से बनाइए ना थर्ड वाला, मतलब वो मेरे को हाँ कल। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इधर मैंने एक करा ऐड कंडीशन। ओके, मूवी। हमारे ऑब्जेक्ट में उस फील्ड का नाम क्या है, मूवी। करेक्ट, हम्म, ये है आपकी फील्ड वो। इधर से हमने ऑपरेटर सेट करा इक्वल्स। हम्म, ठीक है, इधर से हम गए, हमें इसमें से करना है फेच। हम्म, ये हमारा एक्शन है, फेच हम्म, मूवी रिकॉर्ड वाला आपका। हम्म, ओके, इस पे गया। इधर से आप कौन सी फील्ड फेच करनी है, आईडी। ओके। इधर से आईडी लिख दी मैंने यहाँ पे, लेट्स से। अब इसको मैंने कर दिया सेव एज, फिर कर एक्टिवेट। ओके, अब एक काम करता हूँ मैं बस, आई विल डिलीट दिस
can delete this also. Now let's run do again. Okay. I'm entering movie name as Sham Bahadur. Theater name is PVR. Okay, let's take this only. Very first December. Now if I go to the feedback object, okay, I'll look at feedback from there. स्क्रीन पे है फीडबैक. सॉरी, तो ठीक है, ये आपका रिकॉर्ड मैंने खोला यहाँ पे, ये मूवी का रिकॉर्ड खोल लिया यहाँ पे, ऐसे खोला थिएटर का रिकॉर्ड. मूवी के अंदर तो आपको श्याम बहादुर का ही मिला रिकॉर्ड, करेक्ट. अभी जाते हैं थिएटर पे. देखो अब हमें करेक्ट मिल रहा है, थिएटर में से भी उसने श्याम बहादुर वाली मूवी का थिएटर रिकॉर्ड ही लिया है. अंडरस्टूड. पहले क्या हुआ था, पिछली बार हमारा एनिमल वाला रिकॉर्ड ले लिया था उसने, करेक्ट. समझ गया. अब मैंने वो मूवी वाली कंडीशन क्यों डाली है अपने फ्लो में. सर वही ना, कि उसने जो मूवी हमने चाहिए, मतलब उसको जो सिलेक्ट की है वही आनी चाहिए इसके लिए, जैसे कि पहले वो एनिमल ले रहा था. हाँ, उसी मूवी का थिएटर का रिकॉर्ड आना चाहिए करेक्ट. इसलिए. तो उसके लिए हमने आईडी सिलेक्ट किया गया उधर. हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये लुक का फील है ना इधर भी, मूवी थिएटर में भी, हम्म. इसलिए. ठीक है. ओके. कोई क्वेश्चन इस फ्लो में किसी को. और अगर आप, अब आपको मैं अगर वो वाला फ्लो दिखाऊं, मैं आपको फ्लो नहीं दिखाऊंगा. ओके. पर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या, मैं आउटपुट आउटपुट क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपके वाले फ्लो से. ओके. मैंने वो वाला फ्लो भी क्रिएट कर दिया है. ओके. So here the movie name, let's enter as producer. Enter Sham Bahadur. Okay. PVR. How many tickets I wanna book? Uh, let's say I wanna book 9 tickets. Promo code for, let I'm entering promo code as Animal 100. That is the record I'm having in a promotions object. That's why. Okay, and when I want to see this on first position. Once this is done, okay. So for this, the object I used was a booking. If I open this booking record now, booking object. See now,
पर इधर ही वो मैंने मूवी वाली कंडीशन नहीं डाली, तो इसलिए गलत होगा मेरे फ्लो में। तो मेरा में वो मूवी वाली कंडीशन गलत होगा, पर आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, इधर मूवी नेम करेक्ट आ गया यहाँ पे, टोटल कॉस्ट आ गई यहाँ पे। ओके, टोटल कॉस्ट कैसे आई, हमने कितने टिकट्स कही थी? मैंने कितनी टिकट्स नाइन डाली थी अभी अपने नाइन फ्लो? नाइन 9 डाली थी ना? तो 9 के हिसाब से कितना होता है, एक सेकंड ना। हाँ, सो इट्स टेकन द करेक्ट। ठीक है, अगर मैं इस थिएटर के रिकॉर्ड पे गया तो उसने इधर लिया, इधर से 150 के हिसाब से उसने क्रिएट करके 150 × 9 करा, तो वो होता है आपका 1350। ओके, और मैंने एनिमल 100 का जो प्रमोशन रिकॉर्ड है उसमें मैंने 100 रुपीज का डिस्काउंट डाल रखा है, तो इसलिए इसने 100 माइनस कर दिया, तो टोटल कॉस्ट आ गई 1250। पर अभी जो है एक प्रॉब्लम आ रही है मेरे इसमें, उसने ये चीज को अपडेट क्यों नहीं किया, अवेलेबल सीट्स को। इसको 9 से माइनस भी करना चाहिए था, और वो इसलिए नहीं किया, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि वो अपडेट कर रहा है दूसरे पीवीआर को, एनिमल वाले। क्योंकि उसको 2 रिकॉर्ड्स मिले हैं। ओके, तो जैसे मेरे को मूवी वाली कंडीशन में अगर डालूंगा तो मेरा सही चलेगा। पर अगर आपको ये देख रहा होगा जो मैंने कल किया था काम, ओके, पहले था 100 था, फिर मैंने 5 टिकट्स बुक करी, तो वो अवेलेबल सीट्स को 95 कर देगा। एक ये भी मतलब चीज आपको याद रखनी, ये भी काम होना चाहिए आपका। ये अवेलेबल सीट्स भी आपकी अपडेट होनी चाहिए फिर। ओके, कोई क्वेश्चन किसी को? ऋतिक, या जैसे अपने स्क्रीन इनपुट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फील्ड ली हुई है, राइट, सब चीज के लिए फ्लो में, यूजर डेट इनपुट। और टेक्स्ट। हाँ, डेट और टेक्स्ट। तो इसकी जगह हम पिक लिस्ट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं कि उससे फ्लो रन होगा क्या? स्पेकुलेशन फिर वैल्यूज क्या क्या डालोगे? नहीं, वही जैसे मैम ने बताया, प्री डिफाइंड है। जैसे समझिए हम अगर बना रहे हैं तो मूवीज में हमने रिकॉर्ड बना दिए 5 मूवीज के, थिएटर्स में हमने 5 रिकॉर्ड्स के मूवीज बना दिए, थिएटर्स बना दिए। और हम्म। प्री डिफाइंड हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, और वही हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो उसको सिर्फ वो पिक लिस्ट से सर्च करना है, उसमें से सिलेक्ट करना है उसको, उसमें मैन्युअली नहीं एंटर करना है। तो वो रन होगा क्या फ्लो? हाँ, ट्राई कर लेते हैं, जैसे आप ये कह रहे हैं ना, करेक्ट। हम्म। मेरी जैसे बेसिक मैं अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग में व्हेन आई रेड दिस डिटेल्स, राइट, सो मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वही थी कि हम प्री डिफाइन सेट करें, फिर यूजर से हम इनपुट ले, क्योंकि यूजर तो कुछ भी डाल सकता है उसमें, दैट शुड नॉट हैपन, दैट ही इज एंटरिंग सम वैल्यूज एंड वी डोंट हैव दोज वैल्यूज इन आवर ठीक है। डेटाबेस। ओके, तो हमने ये फिल्म नई मूवी नेम के नाम से, ओके, वो विद चॉइस जो हमें डालनी है। ओके, तो मान लो आप कह रहे हो हम 2 ऑप्शन ही डाल देंगे यहाँ पे, शाम बाद। तो फ्लो फ्लो के अंदर ही हम पिक ऐड कर सकते हैं। स्क्रीन के नहीं तो ऐड कर रहा हूँ मैं, इवेंट के अंदर स्क्रीन होगी ना। ओके ओके। एंड सेकंड चॉइस आई एम एंटरिंग एज एन। तो ये हमें अपने टेबल में भी ऐड करनी पड़ेगी ना पहले, ऑब्जेक्ट्स में? ऑब्जेक्ट में क्यों ऐड करो? जैसे इधर जो वैल्यू ले रहे थे मूवी नेम का, ओके, हाँ। instead of that now I will take this field as the is that thing, I will delete this field for now. Okay,
Okay, give it a second. It can't be related because it is being used here while fetching the movie records. Okay, here what I am doing is I am taking this movie name, correct? Instead, I will use this one. This one, pick list field one, whatever value is entering here, that name, that value should be equal to the name of the movie record. सर मतलब जैसे वो आईडी जनरेट होती थी हमारी जो नंबर फॉर्मेट में, हाँ तो नेम ये पिकलिस्ट लिया तो जो पिकलिस्ट में हम डालेंगे जो वैल्यू सपोज जो मूवी का नाम डालेंगे वो ले लेंगे वैसा ही ना। हाँ, जैसे इधर हम क्या कर रहे थे पहले, हम्म हमने इस बार क्या करते नेम इधर किससे चेक कर रहे थे, जो भी हम नेम उधर टेक्स्ट फील्ड में डाल रहे थे, करेक्ट। हम्म हम्म, इधर मैंने वो पिक लिस्ट कर दी, उसकी जगह नेम फील्ड की जगह, उस टेक्स्ट फील्ड की जगह मैंने वो पिक लिस्ट फील्ड वैल्यू सेलेक्ट कर ली कि जो भी वैल्यू इस पिक लिस्ट में सेलेक्ट करेगा वो इक्वल होना चाहिए नेम के। तो बस। सर वो आईडी क्यों ले रहा था मतलब, वैसे तो हम मतलब क्या बोलते कैरेक्टर में डाल रहे थे ना, लेटर में हमारा मूवी का नाम तो उसमें तो रहता ना, तो आईडी क्यों मूवी ले के रहा था। आईडी हम नीचे वाले के लिए ले रहे थे, थिएटर के अंदर, क्योंकि वो लुकअप फील्ड है। आप थिएटर के अंदर जो मूवी है वो आपकी लुकअप फील्ड है, तो उधर आपको आईडी पास करनी पड़ती है। ओके ओके, in lookup field you need to pass the id, you can't pass the name and anything like that. ओके। You need to pass the record id there, that's why। पर इधर तो हम पहले ही वो टेक्स्ट फील्ड ही ले रहे थे ना यहाँ पे, तो इधर से मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो भी आपका फ्लो सही चले, तो ऐसे आप कर सकते हो उसके साथ। तो वैसे हम इधर आईडी पास कर रहे हैं, वैसे अगर नेम पास किया तो नेम आ जाएगा, कहाँ पे? कैसे नहीं कर सकते हम, वो जो थिएटर का अपने मूवी की इसमें वो आईडी पास किया है। हाँ, क्योंकि ये हम्म लुकअप हम्म, फील्ड है ना, ये तो मैं आपको कहना हाँ चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपको आईडी ही पास करना पड़ेगा। यहाँ पे आप नेम भी करना चाहो, नेम भी हो सकता है, तो तब भी पर आपको रिकॉर्ड पहले फेच करना पड़ेगा इधर से। ये जो रिकॉर्ड है ना, ये आपको इधर लेना ही पड़ेगा, फेच मूवी रिकॉर्ड डॉट, इधर डॉट आप फिर नेम। नेम पास डॉट नेम भी लिखोगे तो भी हो जाएगा वैसे। ओके तो ठीक है, हाँ मेरा क्वेश्चन वही था कि बाबा हाँ नेम डाल रहे तो नेम क्यों नहीं। हाँ हाँ, पर ये नहीं कर सकते आप कि जो इधर पिक लिस्ट से नेम आ रहा है वो वाला नेम से करो, आपको इधर से पहले वो रिकॉर्ड फेच करना पड़ेगा, उसी को यूज करना पड़ेगा यहाँ। ओके ओके। ओके। ठीक है। पर आईडी से ना, पता है आईडी से मैं क्यों कहता हूँ आईडी से करा करो, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक रहेगी, नेम कभी बाई चांस सेम भी हो सकता है पर आईडी विल बी यूनिक। सो दैट्स व्हाई मैंने इधर आईडी लिखा। करेक्ट। ओके, तो इसलिए आईडी के साथ आपको एग्जैक्ट करेक्ट रिकॉर्ड ही मिलेगा हमेशा, बस वो एक है फायदा। बाकी आपकी मर्जी, आपको नेम से करना नेम से करो, आईडी से करना आईडी से। और कोई क्वेश्चन? और नहीं कोई और अगर डाउट इंटरव्यू के, अगर आप कुछ और पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो कुछ, और किसी का कोई डाउट आ रहा हो। ऋतिक, इसमें या वैलिडेशन नहीं लगाया गया कि अगर जो प्रोमो कोड है, मतलब जो कोड वो है, वो इस डेट के वैलिडेट पे है या नहीं। तो वो तो बुकिंग वाले में है ना, मेरे वाले में इधर मैं मूवी को बस फीडबैक दे रहा हूँ, मेरे को इसके लिए प्रोमो कोड की क्या जरूरत है। मैंने कहा आपको बेसिक फ्लो दिखा दिया जिसकी हेल्प से अब आप वो प्रोमो कोड 11 वाला काम आपको करना है अपने फ्लो के अंदर। अगर मैं हर चीज दिखा देता तो पूरा फ्लो ही क्रिएट होता ना वाला, मैंने वाला फ्लो भी क्रिएट कर दिया है। वो आप चाहोगे तो मैं आपको फ्राइडे को आप सबको दिखाऊंगा, पर पहले मेरे को आपसे चाहिए कि आप लोग एक बार क्रिएट करो खुद से अब, करेक्ट। तो ताकि एक बार आप लोग थोड़ा खुद से करो तो आपका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा अगर आप कर पाओगे। तो इस फिल्म में को प्रोमो कोड की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, तो इसलिए मैंने प्रोमो कोड का यूज नहीं करा कुछ भी था प्रोमो कोड के ऊपर। ऋतिक,
तो या हमारा जो वो फ्लो होगा उसमें उसमें भी ये सिनेरियो यही होगा कि वन सिंगल स्क्रीन फॉर यूजर इनपुट, करेक्ट। जैसे अभी correct, आपने बताया फीडबैक फॉर्म का, तो ये स्क्रीन तो एक ही होगा ये यूजर हाँ इनपुट के लिए, राइट। उसमें सब डिटेल्स हम कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये जो क्रिएट रिकॉर्ड्स के ये मल्टीपल्स होंगे उसमें। नहीं, गेट रिकॉर्ड्स मल्टीपल होंगे, हाँ। ठीक है ना। गेट रिकॉर्ड्स मल्टीपल होंगे और क्रिएट एक रिकॉर्ड आपके तो बुकिंग के लिए एक होगा, राइट। गेट क्रिएट रिकॉर्ड बुकिंग के लिए होगा, ओके, और ये प्रोमो कोड का जैसे आपने बताया अभी वो जो, वो गेट रिकॉर्ड होगा। अच्छा वो फेच करेंगे फिर, अच्छा तो फिर मेरे ख्याल से जो क्रिएट रिकॉर्ड है वो लास्ट में आएगा, राइट। हाँ, तो देखो ओके। आपके लिए, अगर मैं आपको आइडिया दे दूं, आपको 3 बार गेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक बार अपडेट, एक बार क्रिएट। गेट रिकॉर्ड 3 बार करना पड़ेगा। प्रमोशन के लिए भी, हाँ, करेक्ट। ठीक है, आपको प्रमोशन के लिए, मूवी के लिए, थिएटर के लिए, और फिर थिएटर को आपको अपडेट भी करना। यू नीड टू अपडेट द सीट्स, हाँ, करेक्ट। ओके, जितने हम सीट्स बुक कर रहे हैं, एंड देन यू नीड टू क्रिएट द बुकिंग रिकॉर्ड। तो 2 क्रिएट आएंगे ना इसमें। एक अपडेट, एक क्रिएट हुआ ना। ओके ओके ओके, अपडेट रिकॉर्ड का एक है अलग है, हाँ राइट राइट। हाँ, करेक्ट, और क्रिएट का एक है अलग है, राइट। हाँ, ओके, तो ओके, सब होने के बाद मेरे ख्याल से, सब होने के बाद मेरे ख्याल से लास्ट में ही वो होगा, क्रिएट रिकॉर्ड बुकिंग रिकॉर्ड होगा लास्ट में, हाँ, राइट। बिफोर करेक्ट, एंडिंग द फ्लो। हाँ, ओके। अब मैं कंडीशंस कह रहे हैं, वो सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा, देखो वो खुद से ट्राई करो, करेक्ट। अगर मैं पूरा फ्लो दिखाऊंगा तो फिर उसका फायदा ही नहीं है प्रोजेक्ट देने का, अंडरस्टूड। राइट राइट, वो ट्राई करेंगे हम हाँ, जितना सही है। पॉसिबल है, अगर होता हाँ, है अगर नहीं लाइक। होगा तो बाकी मैं फ्राइडे को क्लास लेनी है, फ्राइडे को मैं दिखाई यस दूंगा आपको, उसकी कोई यस issue। यस यस श्योर। 2 दिन हैं भी आपके पास, 2 दिन ट्राई करो खुद से। वैसे अब इतना इस वाले फ्लो के बाद मेरे को लगता है अब सब लोग कर ही लोगे वैसे, टू बी फ्रैंक। इस वाले फ्लो से आपको भी थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, इसकी हेल्प से मेरे को तो लग रहा है आप लोग कर पाओगे। ओके ऋतिक, तो मैं भी थोड़ी सी मेरी स्ट्रेटेजी चेंज कर दूंगा, क्योंकि आपने जैसे बताया अभी टेक्स्ट और डेटा का, डेटा फील्ड जो लिए है, तो मैं भी वही उसी से ट्राई करूंगा, क्योंकि वो पिक लिस्ट हम्म, में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी मुझे। हाँ हाँ हाँ, आप कि टेक्स्ट मैं से ही कर बहुत, लो, वो ज्यादा इजी। हाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था उसमें, तो मैं टेक्स्ट से ही इनपुट ले लूंगा। ठीक है, हाँ, और लेकिन फिर ऋतिक एक और था, हाँ हाँ, कि इसमें जो हम इनपुट ले रहे हैं वो भी वैलिडेट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास वो रिकॉर्ड ही नहीं है उस टाइप के, तो फिर नहीं तो आपका फ्लो फेल होएगा और उसका एरर आ जाएगा आपका, ओके, फाइल हाँ फैचिंग द रिकॉर्ड्स। तो अभी आप एरर हैंडलिंग मत डालो, क्योंकि एरर हैंडलिंग वगैरह हम आगे जाके डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, ओके। हाँ, मुझे वही अभी कंफ्यूजन था, क्योंकि हम अगर हाँ इनपुट ले रहे यूजर से, वो तो वो कुछ भी थिएटर का नाम डाल सकता है, राइट। हाँ, और एरर वो हैंडलिंग, मिसमैच भी हो सकता एक्सेप्शन है। हैंडलिंग, ये सब चीजें आगे के टॉपिक्स हैं आपके, ओके। मैं वो इसमें आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो वो ओके, सब चीजें आप टेंशन मत लो, आगे डेवलपमेंट में पढ़ेंगे हम वो सब चीजें। डेवलपमेंट मतलब क्योंकि मैं वो, एपेक्स करना पढ़ाऊंगा आपको, पर मैं उसके साथ साथ हाँ फ्लो में भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि कैसे आप एरर हैंडलिंग के लिए क्या क्या कर सकते हो आप, ओके। हाँ। क्योंकि वो अगर हम पिक लिस्ट डालते हैं तो उसमें से हम एरर मिनिमाइज कर सकते हैं यूजर से, राइट, क्योंकि उसको सिलेक्ट करना है, हाँ, इनपुट नहीं देना करेक्ट। है। तो हमारे पास जो डेटाबेस वैल्यू है पर वो हम अगर पिक पिक लिस्ट में लिस्ट ऐड कर बनाओगे तो सकते हैं। आपको एवरी टाइम when new movie is there, you need to update your flow also and enter that pick list value also there, हाँ, correct। तो ये तो बेसिक मैंने लिया था कि 5 मूवी है हाँ हमारे पास, तो हाँ हाँ थिएटर भी हाँ, 5 ही है, ऐसे उस हिसाब से मैंने सोच रहा था। इसलिए। ठीक है, अभी टेक्स्ट का ही करूंगा, फिर बाद में अगर डेवलपमेंट में लगता है नहीं, जैसे क्योंकि आपने देखो मैं बताया। मतलब ये बताना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट और टेक्स्ट, देखो दोनों फील्ड्स का अपना बेनिफिट नुकसान है, ठीक है ना। अगर हम टेक्स्ट करेंगे तो हमें फ्लो में कभी भी एडिट नहीं करना पड़ेगा, चाहे नई मूवी भी क्यों ना है। पर हाँ, करेक्ट। उसके साथ हमारा एरर हैंडलिंग में थोड़ा सा इश्यू आएगा, एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग में इसके अंदर, कि यस जब किसी यस। ने कोई गलत मूवी डाल दिया, पिक हाँ लिस्ट के साथ हम ये चीज को सॉल्व कर पा रहे हैं, पर हमें फ्लो को एडिट करना पड़ेगा जब भी कोई नई मूवी आती है तो, क्योंकि वो चॉइस हमें ऐड करनी है उस पिक लिस्ट के अंदर, करेक्ट। तो करेक्ट। दोनों फील्ड का मैंने आपको फायदे बताए, नुकसान भी बता रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ये होता है, आपसे ना पूछा जाता है जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे ना, इन रियल टाइम आपसे पूछा जाए कि पिक लिस्ट फीड बनाने का क्या फायदा नुकसान है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हमें ऐसे फ्लो के अंदर बार बार चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। और क्या नाम है उसका, क्या फायदा नुकसान है,
टेक्स्ट फील्ड का, तो उससे आपको बताना पड़ेगा, उससे एक्सेप्शन आ सकते हैं कि कोई यूजर कभी भी गलत वैल्यू भी डाल सकता है टेक्स्ट के अंदर। तो ऋतिक, उसके लिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा। हाँ हाँ जी, बताओ। उसके बजाय हम डायरेक्ट लुकअप ही यूज करेंगे तो? लुकअप से चल नहीं रहा था, कल ही तो किसी ने मेरे को दिखा रहा नहीं था कोई। नहीं नहीं, चल रहा है वो। लुकअप देखो, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, मेरे को कल इतना टाइम ना, मैं तो मैंने टेक्स्ट और पिक लिस्ट आपको बता रहा हूँ। नहीं, मैंने लुकअप पे ट्राई किया तो लुकअप का डायरेक्ट वैल्यू जो है वो ले रहा है और एंटर भी हो रहा है। आपने कैसे किया लुकअप बताना। इधर से लुकअप पे आपने लिया था, लुकअप, हाँ। लुकअप लिखा। अरे यार क्या पता है। हम्म, ठीक है। इधर एपीआई नेम अपना लुकअप को जो भी है, इधर फील्ड, अंडरस्कोर लुकअप जैसे कर दिया। इधर फील्ड एपीआई नेम, मूवी का फील्ड एपीआई नेम हमने लुकअप पे लिया था बुकिंग की यहाँ से। कहाँ पे। बुकिंग पे एक हमने लुकअप किया है ना मूवी का। अच्छा, बुकिंग हाँ, ऑब्जेक्ट पे। बुकिंग ऑब्जेक्ट पे मूवी मूवी ऑब्जेक्ट का एक लुकअप तैयार किया है, उस पे एपीआई, उसका एपीआई नेम उधर हम मैंने लिया। अच्छा, वी अंडरस्कोर सी। ओके। हाँ, उसके बाद लेबल ये अपना लुकअप का दिया है, हम्म। और ऑब्जेक्ट नेम बुकिंग का दिया है, सिर्फ बुकिंग लिखा है, बुकिंग अंडरस्कोर सी, क्योंकि कस्टम ऑब्जेक्ट है इसलिए। यहाँ पे फीडबैक दे देते हैं, अभी के लिए हम फीडबैक वर्क कर रहे हैं। ये तो सब आपने ब्लैंक ही छोड़ दिया, करेक्ट। हाँ हाँ, ये बैंक छोड़िए। ठीक है, एक सेकंड में मूवी के साथ ही करके देखते हैं। हाँ, तो आप ऐसे लुकअप भी कर सकते हो अगर आप चाहो। ठीक है। लुकअप में आपको ये सजेशन दिख जाएंगे, जो जो भी आपके मूवी रिकॉर्ड्स आपके और में होंगे वो सारे दिख जाएंगे। यहाँ अभी फिल्म में मूवी नेम में जितने भी एंटर रिकॉर्ड होंगे वो सभी इधर आ जाएंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, सारे रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कह रहे हैं ऐसे ही थिएटर का भी लुकअप बना के भी वर्क कर सकते हो आप। तो उससे आपको गेट रिकॉर्ड्स वाला पार्ट भी आपको बच जाए, और प्रोमो कोड में भी कर सकते हो, तीनों गेट रिकॉर्ड वाला पार्ट आपका बच जाएगा, बस अपडेट रिकॉर्ड आपको करना पड़ेगा। ओके, तो उस बेसिस पे आप कर सकते हो उधर से। क्योंकि मैं कहाँ अटक गया हूँ, तो जो मैं प्रोमो कोड फेच कर रहा हूँ और जहाँ हम्म। वैलिडेशन हम लगा रहे हैं एज अ इफ कंडीशन में, तो मुझे जी वैल्यू जो थिएटर में मैंने डाली थी, प्रोमो कोड, सॉरी, प्रमोशन टेबल में जो डाली थी, वो वैल्यू फेच नहीं कर रहा है वो। उस पे मैं अटक गया हूँ, क्योंकि इक्वल होना चाहिए ना। अगर प्रोमो कोड और जो वैल्यू हम देते देते हैं प्रोमो कोड का, और जो हमारे डेटा लिस्ट में है वो एक इक्वल हो जाए, तो वो फ्लो आगे बढ़ेगा। एक सेकंड। मैं अब इस चीज का कुछ एक्सप्लेन कैसे करूँ, मैं वो सोच रहा हूँ, बिना वाला फ्लो दिखाए। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इधर से एक डालता हूँ एक्शन अपडेट रिकॉर्ड। ओके, मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं मूवी का जॉनर अपडेट कर रहा है,
update movie genre। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर जो भी मैं लुकअप फील्ड से मूवी नेम सेलेक्ट किया उसका जॉनर मेरे को अपडेट करना है। ओके, तो इधर क्या करेंगे हम, जॉन सा ऑब्जेक्ट का अपडेट करना, वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मूवी, कंडीशन डाल दूंगा यहाँ पे, आईडी इक्वल्स, इधर जो था मेरा मूवी लुकअप से रिकॉर्ड आईडी। ओके ओके, ठीक है। इधर से जॉनर को आई विल अपडेट इट एज एक्शन। तो ऐसे करके आप अपडेट कर सकते हो। ऋतिक जी, या या अभी जाना लास्ट फील्ड में आपने जनर के आगे एक्शन लिखा है ना वहाँ मतलब पे? एक्शन लिखा है कि जॉनर को अपडेट कर देगा एक्शन से। पहले बायोपिक वैल्यू थी उसके अंदर, तो एक्शन डल जाएगी। तो इधर आप अच्छा न्यू अच्छा, रिसोर्स वो है वो। करके, हाँ हाँ, यहाँ वैसे कर मुझे सकते लगा हो। ये एक्शन कुछ ये है नहीं नहीं नहीं, नहीं। कंडीशन। ये टेक्स्ट मैंने अपडेट कर। तो इधर से अगर आपको चाहिए तो इधर से आप सारी फील्ड सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। जो आप कह रहे हो ना, आपको वो प्रमोशन के अंदर नहीं मिल रहा, तो आपको ऐसे करके करना पड़ेगा प्रमोशन का। फिर उसके लिए आपको गेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा प्रमोशन के ऊपर, टू चेक द वैलिडिटी। फिर उधर आपको कंडीशन करनी पड़ेगी वैलिडिटी के ऊपर, जो भी आपने शो डेट डाली है इधर से। ओके, इधर आप कंडीशन डालनी पड़ेगी, आईडी तो उधर से उसकी वो होनी चाहिए, और वैलिडिटी जो भी उसकी वैलिडिटी फील्ड डाली है, वैलिडिटी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू वट एवर शो डेट वैल्यू यूर इन द स्क्रीन। तो आप ऐसे कर सकते हो। आई विल ट्राई। ओके, या असाइनमेंट के अंदर या डिसीजन के अंदर जैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हाँ, मैंने डिसीजन लिया था, लेकिन डिसीजन में वो जो मैंने स्क्रीन से फेस लिया है वैल्यू, वो जा रहा है, लेकिन जो पहले से अवेलेबल है, जिसके जिससे हमें मैच करनी है, वो नल दिखा रहा है। ठीक है, मैं ये ट्राई करके देखता हूँ। हो। हाँ, एक बार वैसे ट्राई करना, हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो अब आप सबके ऊपर है, आपको टेक्स्ट से करना है लुकअप से करना है। लुकअप से करोगे तो ज्यादा अच्छा है, जैसे ये कर रहे हैं। ठीक है, तो आप तीनों मेरे किसी, मैं तो कहूंगा तीनों के साथ एक ट्राई करके देख लो। ठीक है, जिससे आपका ज्यादा अच्छे वर्क करते हो वो ज्यादा अच्छा है, जिससे नहीं होगा लुकअप से। सब मेरे हिसाब से पहले लुकअप सबसे पहले ट्राई करके देखो, क्योंकि लुकअप में आपको ज्यादा ट्रबल आएगा। वैसे लुकअप से नहीं होता अगर आपसे, तो टेक्स्ट कैसे आप कर सकते हो। ओके, फर्स्ट गिव इट अ ट्राई फॉर द लुकअप एंड ट्राई टू मेक इट वर्क। नो क्वेश्चंस, कैन यू वाइंड अप द कॉल? हेलो, हम्म, और कोई क्वेश्चन है तो कॉल वाइंड अप करें। और मैं एक चीज कह रहा हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ग्रुप पे पेस्ट कर दो क्वेश्चन। ओके, आई विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द ग्रुप एज वेल। ठीक है। ओके।
है ना। तो मतलब ग्रुप पे मैं ये प्रॉमिस नहीं करता कि मैं आपको एकदम से आंसर कर दूंगा। हो सकता है मेरे को ग्रुप पे आंसर करने में एक दो घंटा मैं एक दो घंटे बाद रिस्पॉन्ड करूंगा आपके क्वेश्चन का। पर हाँ, फॉर श्योर मैं आपको रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा आपके उसके लिए। ओके। क्योंकि कई बार मैं भी हो सकता है अपने ऑफिस मीटिंग में हो तो मैं मैसेज लेट देखूंगा आपका। तो पर आपको रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। 2 to 3 आवर्स में आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा मैं आपके सोल्यूशन को। कई बार होता है मैं उसी टाइम रिस्पॉन्ड भी कर दूं, मैं फोन खाली बैठा हूं तो मैं देख लूं आपको क्वेश्चन रिस्पॉन्ड कर दूं। कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है। और और ये तो आपको पता ही है कि परमानेंट एकेडमी का रूल है कि पर्सनल को आप चैट पे मेरे को क्वेश्चन नहीं भेज सकते, आपको ग्रुप पे ही क्वेश्चन डालने पड़ेंगे। ओके। कैन यू प्लीज elaborate your क्वेश्चन मंजूश्री? हेलो सर, आई एम ऑडिबल। यस। जो टोटल सीट से उसमें बुक जो सीट से वो माइनस हो गए थे, तो वो किसके कारण? उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है। अब है मैं सब चीजें इसके लिए आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा रिसोर्स के अंदर जाके, उस तरह से आपको अपडेट करना पड़ेगा फिर उसको। करेक्ट। नीचे आप ट्राई करो, उसके बाद ही मैं कहूंगा। बुक सीट्स की भी वैल्यू आप ले रहे हो नंबर ऑफ सीट्स स्क्रीन के अंदर। करेक्ट। टोटल सीट्स आपको फेच करना है फ्रॉम अवेलेबल सीट्स आपको फेच करना, नॉट द टोटल सीट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, यू नीड टू अपडेट द अवेलेबल सीट्स। अवेलेबल सीट्स की वैल्यू आप फेच करोगे फ्रॉम द रिकॉर्ड। Okay, and then you will subtract the number of seats value that you are entering in the, what do you say, in the screen, number of seats, number of tickets, number of seats, whatever it is. So then that value you need to update in the available seats field. Update the record in this way. You need to use the formula there. And I have shown you earlier also like how to create the resource formula in a flow formula field and everything. Correct. वेरिएबल और फॉर्मूला बनाने में सिखाया था ना सबको, कोई कंफर्म करेगा फ्लो के अंदर? और रिसोर्स में जाके ना सर। यस यस यस, मैं हम्म। दिखाया था ना सोच में क्या होता है। हम्म। है ना? हाँ। ठीक है ठीक। देखो वैसे आप करो। मैं बस यही कह रहा हूँ सबके लोग, अगर अभी भी नहीं होता ना आपसे फ्लो क्रिएट, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ्राइडे को मैं आपको दिखा दूंगा फ्लो क्रिएट करके। ओके। पर प्लीज फ्राइडे तक खुद से वो ट्राई जरूर करो सब लोग। ये मत, अब ये मत सोचना कि फ्राइडे को तो सर ने बताना ही है तो खुद से बिल्कुल भी कोई ट्राई नहीं कर रहा। ओके। ये तो जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना, क्योंकि आगे जाके यार मैं नहीं होऊंगा जब आप जॉब भी करोगे, आगे जाके आप जब जॉब लग जाएगी कुछ होगा, हर टाइम तो नहीं होगा ना कोई और अवेलेबल आपके पास। तो इसलिए मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ खुद से करो तो एक बार। बाकी अगर नहीं हो तो फ्राइडे को तो मैं हूँ ही लास्ट ऑप्शन। करेक्ट। पर इसको लास्ट ऑप्शन समझ के चलो, ये मैं कह रहा हूँ। ओके। और कोई क्वेश्चन किसी को?
If no more questions, let's wind up this call. Okay. So thank you everyone.